السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبر نامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ مساجد کو عبادت تک محدود رکھنے کے بجائے تعلیم و بہبود کے مراکز میں تبدیل کریں۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا حیدرآباد میں اجلاس۔ میلاد النبی کے موقع پر دیگر برادران وطن تک اسلام کے حقیقی پیام کو پہنچانے پر دیا زور۔ تعمیر ملت کا 24 ستمبر کو نمائش میدان میں 74واں جلسہ رحمت للعالمین۔ نئی نسل کو سیرت طیبہ سے واقف کروانے اہل خاندان کے ساتھ شرکت کی اپیل۔ تلنگانہ میں مزید 9 میڈیکل کالجز کا افتتاح۔ چیف منسٹر KCR نے ورچوئل طریقے سے کیا کالجوں کا آغاز۔ کہا تلنگانہ ہر سال 10,000 ڈاکٹرز کرے گا تیار۔ BRS صدر KCR کی صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ 18 تاریخ سے شروع ہونے والے خصوصی پارلیمانی اجلاس میں پارٹی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ اکبر الدین اویسی نے ریاست نگر جمال کالونی میں کیا اویسی جونیئر کالج کا افتتاح۔ والدین کا احترام کرنے اور موبائل سے دور رہنے کا اسٹوڈنٹس کو دیا مشورہ۔ میلاد اور گنیش تہوار کے موقع پر امن قائم رکھنے کی اپیل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے ملک میں میڈیا کی جانب سے مسلمانوں کی شبیہ کو مسلسل بگاڑ کر پیش کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کوششوں کے جواب میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیغام کو عوام الناس بالخصوص دیگر برادران وطن کے روبرو پیش کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا ایک اجلاس آج جمعے کے دن میڈیا پلس آڈیٹوریم حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ فورم کے صدر مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں فورم کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ فورم نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ مساجد کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں۔ مساجد کو صرف 5 وقتہ نمازوں تک محدود رکھنے کے بجائے مساجد کو تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود کے مراکز میں بھی تبدیل کریں۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے پر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مصلحت اختیار کرنے کی وجہ سے مخالفین ناکام ہو گئے۔ ملک بھر میں لاء کمیشن کو تقریباً 75 لاکھ نمائندگیاں موصول ہوئیں۔ مسلمانوں کے علاوہ سکھوں، عیسائیوں، قبائلیوں، دلتوں نے بھی اپنی تجاویز پیش کی ہیں جو خوش آئند ہے۔ اس کے علاوہ منی پور اور دیگر مقامات پر اقلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور موب لنچنگ کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کی مذمت کرتے ہوئے ظلم کے خلاف اظہار خیال کرنے اور متعلقہ فورمز میں نمائندگی کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے آغاز پر فورم کے اراکین مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری، معتمد صدر مجلس علماء دکن اور ڈاکٹر بابر پاشا کے سانحہ ارتحال پر دعائے مغفرت کی گئی اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم کے صدر کی حیثیت سے مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم کے انتخاب کے بعد اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے کل ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر کے طور پر انتخاب کے بعد پہلا اجلاس منعقد ہونے پر اراکین کی جانب سے دونوں اکابرین کو تہنیت پیش کی گئی۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کا 74واں جلسہ یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بروز اتوار 24 ستمبر کی صبح 9 بجے تا 1 بجے دن نمائش میدان حیدرآباد میں منعقد ہوگا اور چنچل گوڑہ جونیئر کالج گراؤنڈ میں جلسہ یوم صحابہ منعقد کیا جائے گا۔ ان دونوں جلسوں سے جو حیدرآباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے لازمی جز رہے ہیں، ملک کے ممتاز علماء اکرام خطابات کی سعادت حاصل کریں گے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی سابق MP اور مولانا مہدی حسن عینی قاسمی ڈائریکٹر انڈیا اسلامک اکیڈمی دیوبند جلسہ یوم رحمت للعالمین کے مہمان مقرر ہوں گے، جبکہ مقامی مقررین میں شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد، ڈاکٹر احسن بن
मोहम्मद अल हमूमी, इमाम खतीब शाह मस्जिद बाक़िया शामिल हैं। आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर नशीन इस्तकबालिया कमेटी जलसा रहमतुल्लिल आलमीन डॉक्टर अब्दुल खदीर और सदर तामीर मिल्लत जियाउद्दीन नैयर ने ये तफसीलात बताई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, उमर अहमद शफीक, सैफुल रहीम कुरैशी, वहाजुद्दीन सिद्दीकी और मोहम्मद खलीकुर रहमान नायब सदर इस्तकबालिया मौजूद थे। इस जलसे रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की तशहीर के लिए हम क्या खिदमात अंजाम दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क की फ़िज़ा इस आवाम के, जैसे बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो पैगाम देने की बात सिर्फ यह है कि हम जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है वो हम 74 बरस से देते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। और उस पैगाम रसानी में हमारी जो मालूमात हैं उससे ऑथेंटिक मालूमात से जो है हम चाहते हैं कि आवाम तक फैलाएं। और यही पैगाम देते हुए इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ख़वातीन भी इसमें शरीक होंगी। और जैसा उमर शफीक साहब ने बताया कि मर्द और ख़वातीन हजरात के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर आप में से बेशतर उस रस्ते को देखे हुए हैं। अलबत्ता हालात की वजह से सहाबा का जो मनाए थे हम उसको जो पोस्टपोन किया हुआ है। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को वो जलसा भी अंजाम दिया जाएगा। बेशक तावनु अलल बिर्रि वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ हमको ताउन करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। आलमी इस्लाम के लोगों से कि वो इस प्रोग्राम को ऑनलाइन भी ज़रूर देखें। लोग महीनों और सालों इसका इंतज़ार करते हैं और ये एक नहायत ही शानदार बाबरकत सिलसिला मुसलसिल चल रहा है, 74 साल से चल रहा है और लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा कि इसमें ख़ास तौर पे शिरकत करके इस्लामी तहज़ीब से वाकिफ़ हो जाएं। जैसा कि अभी बताया गया कि इस मौके पर अक्सर नौजवान शोरगुल करते हुए बाइक पे दो तीन लोग को मिलकर झंडा लेकर चीखते पुकारते हुए गली गली घूमते हैं, रोडों पे गलत मुजाहरा करते हैं। इसका बुरा असर पूरे शहरियान पर और बरादरान वतन पर हो रहा है। इसके लिए पूरे मुल्क भर के नौजवानों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इस मौके पर कुछ ऐसे नए काम करें और ख़ुद इरादे करें कि हम सुन्नत पे अमल करें और खैर के काम, खिदमत के काम करें और नज़्म व ज़ब्त के साथ ये रैली निकले। और जहाँ कहीं भी फंक्शन होते हैं, ख़ास तौर पे इस साल गणेश का जुलूस भी हैदराबाद में उसी दिन होने से हम बरादरान वतन से एगानिगत का इजहार करते हुए इसको पहले रख रहे हैं, 24 तारीख को रख रहे हैं। जहाँ कहीं भी मुल्क भर में ऐसा मसाइल हैं तो हम अपने वक्त को तब्दील करते हुए अमन भाईचारे का मुजाहरा करें और सही मैसेज मुस्लिम नौजवानों को और बरादरान वतन को दें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज जुमे के रोज अजला, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर, भूपालापल्ली, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, राजन्ना ससल्ला, विकाराबाद और जनगांव में रियासती हुकूमत के जरिए कायम करदा 9 मेडिकल कॉलेजों की क्लासेस का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर सेहत हरीश राव, हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली काउंसिल और महकमा सेहत के अफसरान ने शिरकत की। इस तारीखी मौके पर खिताब करते हुए CM KCR ने कहा कि सेहत आमा के शोबे में तेलंगाना की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हुई है। रियासत न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने वाले सालाना 10,000 डॉक्टर्स को तैयार करने की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भारत के तिब्बी शोबे की तारीख में एक इनकलाब बर्पा कर रहा है ताकि गरीबों तक मियारी सेहत की देखभाल की रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। సంవత్సరానికి 10,000 మంది డాక్టర్లను ఉత్పత్తి చేసే స్థాయికి మేము ఎదుగుతా ఉన్నాం. ఈ 10,000 డాక్టర్లు ఉత్పత్తి కావడం అంటే ఎట్లాంటిదంటే ఈరోజు ఒక మిత్రులు సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. నాకు ఇంతకుముందు హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చూపించారు వారికి వచ్చిన సందేశం నుంచి. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, మనిషికి బాగా ఇమ్యూనిటీ ఉండాలంటే, రోగనిరోధక శక్తి ఉండాలంటే తెల్ల కణాలు రక్తంలో ఏ విధంగా అయితే పనిచేస్తాయో ఈ తెలంగాణ ప్రొడ్యూస్ చేయబోయేటువంటి తెల్ల కోటు డాక్టర్లు రాష్ట్రానికే కాదు దేశ భద్రతకు కూడా పనిచేస్తారు, దేశ ఆరోగ్య వ్యవస్థను కాపాడడానికి అనే దానిలో నిర్వివాదాంశం ఎవరికి సందేహం అవసరం లేదు. తెలంగాణ ఒకవైపు ఒక డైమెన్షన్లో కాకుండా ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం.
जिला राजन्ना सिलसिला में कायम करदा मेडिकल कॉलेज का आज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह अंजाम दिया। इस ज़िमन में सिलसिला में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श के तारका रामा राव ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर KTR ने मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा और तुलबा से खिताब करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। ఎంతో ఓపికగా తెల్ల కోట్లు వేసుకొని కూర్చున్న మా చెల్లెళ్ళకి ఇక్కడ మా అందరికి ఉడకపోస్తుంది, మీరు మీదికెళ్ళి ఒక కోట్ వేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ, మీకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఈరోజు మెడికల్ కాలేజీ ప్రారంభం జరిగిన సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పడానికి విచ్చేసిన మరి మా సిరిసిల్ల అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెలందరికీ పేరు పేరున నా శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా మీకు నమస్కారం. గౌరవ శాసనసభ్యులు అన్న రసమై బాలకిషన్ గారు, మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే గారు, మళ్ళీ తిరిగి మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో కాబోయే ఎమ్మెల్యే గారు, గౌరవనీయులు చొప్పదండి శాసనసభ్యులు, తిరిగి మళ్ళీ మంచి మెజారిటీతో కాబోయే ఎమ్మెల్యే గారు అన్న కుంకే రవిశంకర్ గారు, వేములవాడ నియోజకవర్గానికి కాబోయే శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు, అదేవిధంగా గౌరవ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు మా అన్న తోట ఆగయ్య గారు, గౌరవనీయులైన టెస్కాప్ అధ్యక్షులు కొండూరి రవీందర్రావు గారు, పవర్లూమ్ మరియు టెక్స్టైల్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు గూడూరి ప్రవీణ్ గారు, గౌరవ भारत राष्ट्र समिति पार्टी सदर व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज जुमे के रोज प्रगति भवन में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में सीएम KCR ने 18 तारीख से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में BRS पार्टी की हिकमत अमली के बारे में अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने मरकज से रियासत को वाजिबात, पार्टीशन एक्ट में दी गई जमानतें, मरकज की तरफ से लाए गए बिल और दीगर मसाइल, पार्टी के मौकूफ और उस पर अमल करने की हिकमत अमली पर खुसूसी हिदायत दी। इस मीटिंग में पार्टी के पार्लिमानी लीडर के केशव राव और लोकसभा लीडर नामा नागेश्वर राव समेत तमाम अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज जुमे को रियासत नगर के जमाल कॉलोनी में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ओवैसी जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में तुलबा व तालिबात को अपने वालिदैन का एहतराम करने की तलकीन की। उन्होंने बच्चों को कहा कि माँ की इताअत और बाप की फरमाबरदारी में ही कामयाबी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दुनिया की इमामत सिर्फ इल्म से हासिल की जा सकती है और पुराने शहर में वो सलाहियत और काबिलियत मौजूद है। आपकी भूख को मिटाने के लिए चूल्हे के पास खड़ी रहती है और पका के खिलाती है, उस मां की इज्जत कर लो तो दुनिया मिल जाएगी। वो बाप जो आपके खुशियों के लिए बाजारों में घूमता है, ऑटो चलाता है, पैदल साइकिल के पैडलों मारता है, जहां काम करता है उस सेठ की फटकार को सुनता है, बातों को सुनता है, तो किसके लिए? आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए, घर में चूल्हा जलने के लिए उस बाप का एहतराम कर लो। वो बाप की दुआएं तुमको जिंदगी में आगे बढ़ा। समझो मेरी इस बात को, समझो मेरी इस बात को। खुदारा ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। MBBS की तालीम छोड़कर आया, बाप की मोहब्बत में अपनी तालीम को तर्क कर दिया, बाप की मोहब्बत में। सियासत में नहीं आना चाहता था, बाप की मोहब्बत में आया। इंतखाब नहीं लड़ना चाहता था, कभी नहीं लड़ना चाहता था, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन बाप की मोहब्बत, मां का हुक्म हुआ, इनकार नहीं कर सकता। मां ने कहा अकबर अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। मैंने कहा मां आप क्या कह रहे हैं? आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे, और इस इंतखाब के मैदान में आ गया। आज भी मेरी मां रोती है, आंखों से आंसुआ टपकते हैं और कहती है कि मेरी वजह से आज तुमको गोलियां लगी, काश के मैं तुमको मजबूर न करती इंतखाब लड़ने के लिए, तुम्हारे सेहत का यह हाल न। मगर मुझे इस दुनिया की फिक्र नहीं है, मुझे अपनी मां की खुशी, मां की इताअत, बाप की फरमाबरदारी है, अल्लाह की रजा। खुदारा
नतीजा कुछ भी आओ, मायूस नहीं होना। जब सिर्फ इंटरमीडिएट पास इतने इमारत बना सकता है, तो आप लोग तो बहुत काबिल है, बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर नहीं बने तो मायूस नहीं होना। बाईपीसी में बहुत सारी फील्ड्स हैं, फार्मेसी है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, जेनेटिक्स है, कई फील्ड्स हैं। रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, डायबिटीज पे रिसर्च कर सकते हैं, कैंसर पे रिसर्च कर सकते हैं, स्टेम सेल पे रिसर्च कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे आप जा सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग, ये स्किन ग्राफ्टिंग होती है ना, मेरे पास यहां स्किन ग्राफ्टिंग हुई थी, या पूरा सुराख था हाथ में, तो दूसरा स्किन निकाल के यहां हाथ में भरे थे। तो स्किन ग्राफ्टिंग, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, क्या नहीं कर सकते हम। अरे आईएएस आईपीएस में पहले साइंस के बैकग्राउंड रखने वालों के लिए ज्यादा क्वेश्चनेयर्स नहीं थे, लेकिन अब सिविल सर्विसेज में भी साइंस बैकग्राउंड रखने वालों के क्वेश्चन और अपॉर्चुनिटी उतना ही है जितना मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स का है। अगर नीट अगर आप क्रैक नहीं कर सके तो छोड़ो, आप सिविल सर्विसेज को क्रैक करेंगे बोल के तैयारी शुरू कर दो। इंशाल्लाह आप सिविल सर्विसेज को क्रैक करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, ये मेरा ईमान है। ये दिन आएगा, दुनिया समझती है कि पुराने शहर में जहालत है, नहीं, पुराने शहर में सलाहियत है, काबिलियत है, जोश है, जुनून है, जज्बा है। सिर्फ मौका नहीं था, अब वो मौका अकबर ओवैसी दे रहा है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए। अब वो दिन दूर नहीं जिनको लोग समझते थे कि ये आखिर में ठहरने वाले हैं, अब वो दिन करीब है। हम आखिर में नहीं रहेंगे, अब दुनिया की इमामत हमारे हाथ आएगी और दुनिया हमारे पीछे आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ और सिर्फ इल्म, 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 इल्म। अल्लाह की रजा, माँ बाप की रजा, उस्ताद का एहतराम से ही मुमकिन है कि दुनिया की इमामत हमारे हाथ में। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी ने देर रात गए तक शादी तकारीब में शिरकत से स्टूडेंट्स को मना किया। उन्होंने एक साथ आ रहे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गणेश त्योहार के मौके पर अमन कायम रखने की अपील की। अब तो इतने शादियां हो रहे, इतने शादियां, पूछो मत। दूल्हा कहाँ है? पार्लर में। दुल्हन कहाँ है? मेकअप में। अरे ईशा हो गए बाबा। आप बोलो रात में 12 बजे तक अगर कोई शादी में शरीक करेगा तो सुबह 8:30 बजे स्कूल को कैसा आएगा? क्या पढ़ाई खराब नहीं होगी? समझो प्लीज इस बात, प्लीज अपने भाइयों को भी भेजो। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, जॉब हम देते हैं, टूल किट देते हैं, भेजो उनको। फिर और एक अपील सबसे करूंगा, यहां जो बैठे हुए हैं नौजवानों से, और मेरी आवाज अगर दूर तक भी जा रही है तो उनसे भी मेरी अपील है कि गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी दोनों साथ में आ रहे हैं। अमन बरकरार रखो, अमन बरकरार रखो। नफरत फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं बाज लोग, उनको नाकाम करो। अमन को बरकरार रखो। हम सबको चाहिए कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम में क्या कमजोरियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको दूर करें। सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन से दूर रहने और फारिग वक्त में किताबें पढ़ने का मशवरा दिया। Spend some time reading books rather than spending time watching your mobile phones. Please, अल्लाह सबको इस शैतान से महफूज रखे।
तबाही व बर्बादी ये ला रहा है, गलत सलत इत्तलात दे रहा है, हौले शौले मशवरे दे रहा है, तबाही बर्बादी के रास्ते बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरा ईमेल है, ना मेरे पास व्हाट्सएप है, ना मेरे पास इंस्टाग्राम है, ना मैं कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हूं। अल्लाह मुझे महफूज रखा, सिर्फ फोन उठाता हूं, फोन रखता हूं, इतना ही मेरा काम फोन का। वो भी मेरा फोन साइलेंट पे रहता है, साइलेंट पे। देखा उठा लिया, नहीं देखा नहीं उठाया। अगर फोन उठाते रहूंगा तो काम कुछ भी नहीं कर सकूंगा। मेरे पास बहुत काम है। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा, प्लीज बुक्स, यहाँ की लाइब्रेरी भी शफीक अच्छी करे ना, बेहतरीन लाइब्रेरी करे। ये लाइब्रेरी में भी स्पेंड करिए टाइम, पढ़िए लाइब्रेरी में बुक्स। मैं हमारे प्रिंसिपल से कहूंगा कि स्कूल और कॉलेज के डेली टाइम टेबल में 1 घंटा हफ्ते में 1 दिन लाइब्रेरी का पीरियड भी रखिए, ताकि बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के किताबों का मुताला करें, पढ़े, दीन के किताबें हो, साइंस के हो, टेक्नोलॉजी के हो, पढ़ें। और मैं ये भी कहूंगा, मेरे प्रिंसिपल से कहूंगा, हमारा ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम है, हमारे बच्चियों को ले जाइए, वहां पे डॉक्यूमेंट्रीज और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज अगर कुछ है तो हमारे बच्चों को वो भी दिखाइए फ्री में। ओवैसी जूनियर कॉलेज जमाल कॉलोनी ब्रांच में दाखिला लेकर स्टूडेंट्स ने नई तारीख रकम की है। ये बात अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज जमाल कॉलोनी में इस कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान कही। मैं सारे बच्चियां यहाँ पे जूनियर कॉलेज की जो आई हैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल, boys and the girls who have come for the MSET and NEET coaching. I welcome all the girl students who have come as a freshers and the first batch of OSC Junior College. ये पहला बैच जो है ना हमारा, उनसे ये कहूंगा, by taking admission in OSC Junior College, Jamal Colony branch, you have become the part of history. You have become the part of history. Tomorrow, we are going to create a history. When we create a history, the historians will remember this first batch and the speech of Akbar Owaisi. That this has led to the victory of achievement of these students. So Alhamdulillah, you have made the history now. We have become a part of history. Let us all come together and create a history, make a history, and see that OSC Junior College is the #1 junior college in the entire state of Telangana. Not only in the state of Telangana, but in the entire country. The success would be the highest of OSC Junior College. इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है आप इन बच्चियों की मेहनतों पर और टीचरों की कोशिशों पर अल्लाह जरूर हमको कामयाबी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी वजीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने आज जुमे को तेलंगाना लिबरेशन डे की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर बाइक रैली की क़यादत की। रेड्डी ने पार्टी की कई कायदीन व कारकुनान के साथ सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड से बाइक रैली का आगाज़ किया। तेलंगाना बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज व साबिक़ मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने सिकंदराबाद से रैली को झंडी दिखाई, जो वरंगल जिले के पारकल में इख्तिताम पजीर होगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी का मुतालबा है कि रियासती हुकूमत सरकारी तौर पर 17 सितंबर को तेलंगाना लिबरेशन डे के तौर पर मनाए।
निसाबी कुतुब में शहदा के असबाख को शामिल करें और शहदा की यादगारें भी कायम करें। बता दें कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 सितंबर को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मरकज की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली अहम सरकारी तकरीब तेलंगाना लिबरेशन डे प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना में बरसर इख्तिदार BRS हुकूमत 17 सितंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाएगी। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल भी वज़ीर आला KCR की क़यादत में यही तकरीब मुनक्किद की गई थी। 17 सितंबर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली इस अहम सरकारी तकरीब में कौमी परचम लहराएंगे और रियासत के तमाम अजला में भी नेशनल इंटीग्रेशन डे का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें रियासती वुज़रा या ज़िला कलेक्टर्स कौमी परचम लहराएंगे। गौरतलब है कि 17 सितंबर 1948 को जब उस वक्त की रियासत हैदराबाद, जिसमें तेलंगाना और मौजूदा कर्नाटक व महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल थे, निज़ाम की फ़ौज के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की फ़ौजी कार्रवाई के बाद हिंदुस्तानी यूनियन में हैदराबाद को ज़म कर लिया गया था और इसी दिन को नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाया जा रहा है। बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से भी 17 सितंबर के दिन एक बाइक रैली और अवामी जलसा मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने 17 सितंबर को मुनक्किद होने वाले तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे तकरीब के ज़िमन में आज जुमे को मुनक्किद की गई फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। वाज़ेह हो कि 17 सितंबर को इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी होंगे। आज मुनक्किदा इस फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस दस्ते की परेड का मुआयना किया। उन्होंने तकरीब की फुल प्रूफ तैयारियों के हवाले से हुक्काम को ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर तेलंगाना DGP अंजनी कुमार, सेक्रेटरी GAD शेषाद्री, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट सुनील शर्मा, सेक्रेटरी R&P श्रीनिवास राजू, कमिश्नर महकमे I&PR अशोक रेड्डी और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। हैदराबाद के हल्के कारवान से मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने गोलकुंडा के रिसाला बाजार, रेशम बाग और अकबरपुरा में वाक़े बस्ती दवाखानों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने इंचार्ज बस्ती दवाखाना डॉक्टर श्री हर्षा यादव को दवाखाने की देखभाल और अद्वियात की खिल्लत को दूर करते हुए मरीजों की सहूलत के लिए मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत दी। इस दौरान रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन के साथ मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। डेंगू केसेस कितने आते हैं मैडम? कैसा बन जाते हैं ब्लड सिस्टम नहीं मिलता डेंगू केसेस ये नियर बाय एक बाजू में एक बस्ती दवाखाना है सर। हां सितंबर अक्टूबर पेशेंट भी ज्यादा नए खिले से आते हैं, इधर से आते हैं, उधर से आते हैं, रेती गली पूरा मिलता है जी सर। नहीं 2 बजे बंद करके चले जाते हैं। 4 o'clock डेली कितने 100 क्लास होते हैं पक्का? बारिश हुई तो बल्कि ఇంజనీర్ తో మాట్లాడను సార్, ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో డ్రైన్లనే ప్రాబ్లం ఉంది। दवा दिए इससे पहले इतने जल्दी से मैंने इससे पहले मैं बेटी की दवा थी घर पे, वही टैबलेट यहाँ दवाएं वाला पूरे शहर हैदराबाद के मारूफ बच्चों का दवाखाना नीलोफर अस्पताल से एक 6 माह के बच्चे को मुबैना तौर पर जुमेरात की रात नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बच्चे की वालिदा फरीदा बेगम खाना लेने बाहर गई हुई थी कि ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने बताया कि बीमारी में मुब्तला बच्चे को दोपहर के वक्त अस्पताल लाया गया था। बच्चे की वालिदा ने अस्पताल के अंदर और बाहर लड़के का पता लगाने की कोशिश की, ताहम बच्चे के ना मिलने पर उसने फौरी नामपली पुलिस से रुजू किया। पुलिस को शुबा है कि अस्पताल में मौजूद एक और खातून ने बच्चे को अगवा किया होगा। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने 3 खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। मेरा छोटा बच्चा 6 महीने का है, मैं सो गया था, वो औरत बैठी हुई थी, बात करी 10-15 मिनट, उसका बच्चा 2 महीने का है, सामने वार्ड में है बोल के बोली। तो मैं उसको पूछी यहाँ कहीं को बैठी, तू जा फिर तेरे बच्चे का, बोले तो नहीं मेरा आदमी है उधर बोल के बोली। एक वार्ड में 2 जनों को नहीं रहने दे रहे, इसलिए मैं थोड़ा बैठने है यहाँ पर बोल के बैठी उन्हें। बैठी तो मेरा बच्चा दूध पी रहा था, पीते पीते सो गया। तो मैं नीचे उसको डाले तो एक जने बोले खाना हो जाता जल्दी जाओ बोले। तो मैं टिफ़िन लेके खाना लाने गई, 10-15 मिनट आके देखी तो औरत भी नहीं है, मेरा बच्चा भी नहीं है। नहीं पहचानती मैं उसको, वार्ड में 2-3 घंटे मतलब 15-20 मिनट पहले ही देखी उसको।
ब्राउन कलर की नाइटी है, येलो कलर का स्कार्फ बनने की थी, ओढ़नी बनने की थी, हिंदू की थी, बुट्टू लगा ले की थी और हिंदी भी रुक रुक के बात कर रही थी। नहीं, उसको हिंदी भी सीधा बात करने नहीं आ रहा था। तो आपसे क्या बात, नंबर क्या है फिर? 9063399781 और एक नंबर है 9160534141। ये 2 नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा बच्चा कहीं भी दिखा, स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या दरगाह में, बस स्टैंड पे, कहीं भी दिखो, आप एक कॉल कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए मेरे को। कंप्लेंट दी आपने? ऑलरेडी नामपल्ली पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेंट दे दिया, 8 बजे दे दिया कंप्लेंट। हाँ आए, SI साहब आए, सर्कल साहब आए, वो लोग एक्शन में लेने के बाद में CC कैमरे चेक कर रहे वो लोग। कहाँ के रहने वाले आप? मैं गंडीपेट एक्स रोड। वहाँ से आए? जी हाँ। क्या हुआ था आपके बड़े बेटे को? मेरे बड़े बच्चे को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट बीट का कुछ प्रॉब्लम है, तो इमरजेंसी में लेके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वार्ड में एडमिट करे। उसका इलाज चल रही था। कब चोरी हुआ बच्चा आपका? 6:30 बजे के टाइम पे चोरी हो गया मेरा बच्चा। 6:30 बजे? खाने की गाड़ी आई थी, जब खाना लेने के वास्ते वार्ड में था बच्चा, खाने लेने के पलटे तक चले गया बच्चा और कैमरे लगे हुए नहीं है वार्ड में। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मसाजिद को इबादत तक महदूद रखने के बजाय तालीम व बहबूद के मराकज़ में तब्दील करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का हैदराबाद में इजलास। मिलादुन्नबी के मौके पर दीगर बिरादरान वतन तक इस्लाम के हकीकी पैगाम को पहुँचाने पर दिया जोर। तामीर मिल्लत का 24 सितंबर को नुमाइश मैदान में 74वां जलसा रहमतुल्लिल आलमीन। नई नस्ल को सीरत तैयबा से वाकिफ करवाने अहले खानदान के साथ शिरकत की अपील। तेलंगाना में मजीद 9 मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर KCR ने वर्चुअल तरीके से किया कॉलेजों का आगाज। कहा तेलंगाना हर साल 10,000 डॉक्टर्स करेगा तैयार। BRS सदर KCR की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 18 तारीख से शुरू होने वाले खुसूसी पार्लिमानी इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत नगर जमाल कॉलोनी में किया ओवैसी जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह। वालिदैन का एहतराम करने और मोबाइल से दूर रहने का स्टूडेंट्स को दिया मशवरा। मीलाद और गणेश त्यौहार के मौके पर अमन कायम रखने की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।